Morning class 12. So this is the next lecture of alkyl halorane, that is the lecture number 8. In the last video I have discussed with you the preparation of alkyl halide from alkene. Now I am going to talk about the preparation of alkyl halide. This is alkyl halide. First of all it is alkene halide बना अभी, ठीक है. So this is alkane. So first of all, when we are having alkyne, then when the addition of HX take place over there, then if it is symmetrical, same like that of the alkene, then H can go to any carbon, X can go to another carbon, as this is a symmetrical one. So again, when there will be a addition of HX, as we have to form alkyl halide, that is alkidine. Okay, एल्काइलिडीन बना है ये हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए एल्काइल हैलाइड. सो व्हेन वी नीड एल्काइल हैलाइड, देन अगेन देयर विल बी एडिशन ऑफ HX विल बी देयर, एंड देन वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. Okay, so this will be the product. This is a general reaction that there will be a addition of hydrogen halide, okay, and to the alkyne, and when there is addition of hydrogen halide to the alkyne, then it will leads to the carbon-carbon single bond, and the addition of HX if the alkene is symmetrical, alkyne is symmetrical, so HX, hydrogen and halogen can go to any of the carbon specially. Okay, but when the question arises when the alkyne is unsymmetrical, okay, like we are having example. First of all, I am taking the example of symmetrical one, that CH triple bond CH. This is what acetylene भी बोलते हैं इसको. Okay, this is what acetylene, और क्या बोलेंगे इसको, ethyne. So when we are having acetylene or ethyne and you will do the addition of HCl to this, it result in the formation of like this. ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है. एंड देन अगेन देयर विल बी एडिशन ऑफ HCl एंड वी विल गेट लाइक दिस. कुछ ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है. सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा. ये हमारा बना है विनाइलिक क्लोराइड और ये बना है हमारा इथिलीन डाइक्लोराइड. ओके, दिस इज विनाइलिक क्लोराइड, क्योंकि आपको बताया था व्हेन द कार्बन इज डबल बॉन्डेड, अगर उसके ऊपर वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ विनाइलिक. ओके, एंड दिस इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बिकॉज ये एल्काइन से बना है, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इथलाइन. ओके, इथिलीडीन डाइक्लोराइड. So this is the name of the complex here. So this is the preparation of alkyl halide from alkyne. But the question arises when you are having unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkyne. So when you have unsymmetrical alkyne like this is unsymmetrical alkyne, and you will do the addition of HCl to that. Then question arises to which the hydrogen will go and which chloride will go. So in that case you will follow same. क्या follow करोगे यहाँ पे, Markovnikov's rule. Okay, you will follow Markovnikov's rule, and accordingly the product will be here, that will be CH3C. hydrogen will go to more number of hydrogens, so we will have कुछ ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जिसको आप फर्दर आप जब HCl का एडिशन करेंगे, सो यहाँ पे बनेगा CH3CCl. okay, again there will be Cl and this will be CH3. ओके, क्योंकि इसके पास फिर से वही मार्कोनिकोव फॉलो होगा. जो हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा थे तो यहाँ जाएगा नहीं ये वाला हाइड्रोजन, और जो Cl है इट विल गो टू दिस कार्बन. सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड टू एल्काइन. अब ये था मार्कोनिकोव, लेकिन सेम HBr के लिए ये होगा. अगर यू विल डू फॉर HBr, सो यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस. ओके, बट इफ़ द सेम प्रोसेस ऑफ एल्काइन और HBr है और यहाँ पे आप पैरोक्साइड यूज़ कर रहे हो जैसे आपने एल्कीन में किया था, देन इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है. देन इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. वही सारा है जो आपने लास्ट वीडियो में किया कि जब HBr का एडिशन तुम सिंपली करोगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड, देन तो वो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा. बट इफ़
you will do in the presence of hydrogen peroxide, then it will follow anti-Marconi curve. So this is the concept here. Okay, now proceeding to the next part, that even the halogenation of the alkyne can also be done in the presence of liquid ammonia. Okay, that's next reaction which I'm going to discuss with you. So halogenation of alkyne, it's a very simple process. Okay, here what will be there, we are having alkyne, okay, and their halogenation of that is addition of x2 will take place. See clearly it should be visible to you. So x2 यहाँ पे जब halogen किसी भी halogen की आप addition करते हो, but you will do the addition that will be in the presence of liquid ammonia. Okay, so that's a addition, then you will get a product that is C double bond C X and X. So you will get like this. Further addition of halogen again in the presence of liquid ammonia, and you can get a product in which you will have tetra halogen कंपाउंड. ठीक है, आपके पास क्या होगा, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड होगा. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. अब आपने क्या करनी है, इसकी हैलोजिनेशन करके मुझे अपना रिजल्ट सेंड करना है. ठीक है, सो वी विल हैव दिस विद ब्रोमीन, इसमें हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. सो यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हेयर. ओके, हमारे पास टेट्रा मिल रहा है, सो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ भी टेट्रा हैलाइड प्रोडक्ट मिलेगा. पहले डाई हैलाइड मिलेगा, फिर टेट्रा हैलाइड, तो इसका आपने प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे, हमारे पास दो नेमिंग रिएक्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे. ओके, so the first naming reaction I am going to discuss here, that is a Finkelstein reaction. Okay, Finkelstein भी बोल देते हैं, Finkelstein reaction. So ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. हाइड्रोकार्बन हमारा, ये भी एक हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, लेकिन स्पेशली ये जो है यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड फिंकलस्टीन में वी आर अवेलेबल विद अल्काइल हैलाइड. ठीक है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन स्पेशली एल्कीन और अल्काइन, दैट इज फिनिश्ड ओवर हेयर. अल्काइन तक फिनिश हो गया. नाउ हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन. नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, होता क्या है, वी विल हैव अल्काइल हैलाइड. हमारे पास अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी अवेलेबल होता है, एंड दैट अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. ठीक है, एंड दैट रिएक्शन टेक प्लेस इन अ रिफ्लक्स कंडेंसर. ठीक है, रिफ्लक्स मीन्स एक कंडेंसर में इसको रिएक्शन होती है. ठीक है, सो दैट टू अवॉइड मॉइस्चर. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड होता है, एंड द प्रोडक्ट वी विल गेट दैट विल बी RI प्लस NaX. आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, दिस विल बी द रिएक्शन विच यू विल फाइंड आउट. ये स्पेशली जो रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन, दैट इज you specially used to prepare alkyl halide which contain alkyl iodide. ओके, ये अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड द सोडियम हैलाइड जो यहाँ से बनता है विद एक्सचेंज दैट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, और इसीलिए इसको क्या किया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है वहाँ से, एंड वी विल गेट प्योर product of alkyl iodide. So this reaction is known as a Finkelstein reaction. Don't forget to use the catalyst here, that is acetone, which is used as a reflux action. ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. ये तो हमने बात की कि जनरल रिएक्शन थी हमारे पास. नाउ एग्जाम्पल ऑफ फिंकलस्टीन, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर. नेमिंग रिएक्शंस आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज द alkyl halide that is used when it is treated with sodium iodide, and we are using acetone and then reflux. Then what is the observation, यहाँ पे फिर से एक्सचेंज हो जाएगा, and we will get CH3CH2I plus NaBr. सो हमारे पास एक ये आएगा प्रोडक्ट. एक नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होगी CH3CH2. Next reaction I'm taking, that is ethyl chloride, and again you will treat that with sodium iodide. Again acetone होगा, रिफ्लक्स करेंगे आप. ठीक है, when you will reflux it you will get CH3CH2
एंड अगेन I with NaCl. सो ये कहते क्या होते हैं, जो NaCl NaBr है, दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, दैट्स वाई दीज आर सेपरेटेड आउट. और इसी की वजह से अगर हमारे पास ये नहीं अवेलेबल होंगे, सो हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो बना उसमें ये हमारा एक जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज़ नॉट अवेलेबल, उसको प्रेसिपिटेट हुआ तो उसको सेपरेट आउट कर लिया, तो बैकवर्ड रिएक्शन के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं. मतलब बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी. अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट ही नहीं होगा बैकवर्ड जाने के लिए तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, एंड वी विल गेट द प्योर अल्काइल आयोडाइड प्रोडक्ट ओवर देयर. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फिंकलस्टाइन रिएक्शन. ठीक है. Next, we are having another reaction that is known as a Schwarz reaction. Next one. Schwarz reaction. जैसे अब फिंकलस्टीन की स्पेशलिटी क्या थी, दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड. Now what about Schwarz reaction? कहते क्या होता है, Schwarz reaction is used to prepare alkyl fluoride. अभी तक हमने जो भी रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं पढ़ी स्पेशली जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं. हम यूजली वी स्टार्ट फ्रॉम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. यहाँ पे हमने स्पेशली आयोडाइड बनाया. सो Schwarz रिएक्शन बिकॉज कहते क्या होता है, द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फ्लोराइड जो होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. सो फॉर दैट अ स्पेशल मेथड इज यूज दैट इज नोन एज अ Schwarz रिएक्शन. ठीक है, इट इज़ नोन एज अ Schwarz रिएक्शन. व्हाट हैपन हियर, any of alkyl मतलब हैलाइड इज़ यूज्ड. द रिएक्शन सी यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग हियर अल्काइल क्लोराइड. ओके, इथाइल क्लोराइड यूज़ किया जा रहा है. इसको क्या किया जा रहा है, इट इज़ ट्रीटेड विद मर्क्यूरियस फ्लोराइड. मर्क्यूरियस फ्लोराइड. ओके, इसका नाम है मर्क्यूरियस फ्लोराइड. So when it is treated with mercurius fluoride, we will get 2CH3CH2F. हमारे पास आ गया इथाइल फ्लोराइड आ गया, and that with that we will get what, Hg2Cl2, that is mercurius fluoride. So what is Schwarz reaction, in which you have to prepare alkyl fluoride, that is ethyl fluoride. मतलब कोई भी alkyl fluoride, here I am using ethyl fluoride. So if you want to prepare any of alkyl fluoride, then you are treating that with either of mercurius. यहाँ पे मैंने mercurius fluoride यूज़ किया है. यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप, mercurius fluoride. ओके, और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड, और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड. ओके, COF3. और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड. ओके, SBF3. अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज़ हुआ हो विद एनी ऑफ एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, देन उसको जब इनको इससे ट्रीट किया जाए तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो फ्लोराइड आ जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ Schwarz reaction. Okay, the next and the last preparation of the alkyl halide is Hunziker reaction. That's also a naming reaction which I am going to discuss with you. So the next one is Borodine Hunziker reaction. Okay, बोरोडाइन भी बोल सकते हो आप, बोरोडाइन Hunziker, not Hunziker, Hunziker reaction. Now what is this reaction, इसमें क्या होता है? In this case especially what is there, we are using a acetate group, that means a carboxylic group हम यहाँ पे use करते हैं. Okay, here what is, we are using silver salt of carboxylic acid. दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH. देखिए ये होता है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको. COOH इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. व्हेन यू विल रिप्लेस दैट हाइड्रोजन विद सिल्वर, देन दिस विल बन सिल्वर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड व्हेन इट इज़ प्रेजेंट विद सम ऑफ द अदर सब्स्टिट्यूएंट तो इसका एक सॉल्ट बन जाएगा. सो दैट इज़ नोन एज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ treated with the halogen, here we are doing using bromine, even you can use chlorine also. Okay, bromine or chlorine. Why not iodine, उसका भी बात कर लेते हैं. bromine when you will use
and you will treat that in the presence of CCl4, then what will be there? You will get a alkyl halide, okay, that is मिथाइल ब्रोमाइड आपको प्रोडक्ट मिलता है. इन एडिशन टू दैट व्हाट यू विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा बाहर हो जाता है, और साथ में Ag यहाँ से और एक Br यहाँ से, सिल्वर ब्रोमाइड. अब यहाँ इसकी एक लिमिटेशन देखिए, यहाँ पे जो आपने रिएक्टेंट यूज़ किया था देयर द कार्बन नंबर आर 2, बट यू आर गेटिंग इन प्रोडक्ट जो आपको एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, इन दैट यू आर गेटिंग the product that is in the less with the less carbon than that of the starting reactant. Moreover, another thing which I am going to tell you, that even you can perform this same reaction with the chlorine and by using CCl4. So you will get here CH3Cl plus again कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड. अब जब कहते हैं you are trying to perform the same reaction, okay, with iodine, you are having silver acetate group here. सिल्वर, ये देखिए एसिटिक एसिड होता है ना ये, CH3COOH. अब इसमें क्या है, ये इसको हटा दिया तो ये बन गया सिल्वर, लगा दे तो सिल्वर एसिटेट हो गया ये, ठीक है, सॉल्ट ऑफ सिल्वर एसिटेट. अब क्या होगा, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रीट दिस वन विद आयोडीन, आप इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करने जा रहे हैं, फिर से वही CCl4 आपने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है. बट व्हाट विल हैपन हेयर, you will not get the expected product like that of bromine or chlorine, but here you will get ester, you will get ester, okay, and in addition to that you will get carbon dioxide and silver आयोडाइड. बाकी इसको बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, और कुछ नहीं है. सो व्हेन यू विल ट्राई टू बैलेंस इट, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं. सो CH3CO CH3, इन एडिशन टू दैट यू विल हैव 2 सिल्वर आयोडाइड. कुछ ऐसा हमारे पास बनेगा. सो यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट लाइक दिस, बट यू आर गेटिंग एक्चुअली अ डिफरेंट प्रोडक्ट. ये एस्टर होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सराउंडेड बाय बोथ साइड एल्काइल ग्रुप. सो दिस इज अ एस्टर, और इसका नाम क्या होगा, क्या बनेगा, एक को मिथाइल मान लेंगे, सो इट्स नेम विल बी मिथाइल. ये क्या बन जाएगा, एसीटेट. सो इट्स नेम इज मिथाइल एसीटेट. ये हमारा नाम हो गया इसका कॉम्प्लेक्स का. और उसके बाद यहाँ पे इस, because we are not getting actual product here, so this reaction is a special reaction, it is having a name, ओके. ये स्टडी की थी जिस पर्सन ने, सो इट इज़ बिहाइंड द नेम ऑफ दैट पर्सन, लाइक हंस डीकर जिसने की, उसके अकॉर्डिंगली. सो इसका भी एक नाम है रिएक्शन का. सो आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ गिवन, ऑलरेडी गिवन, ओके, दैट इज अ बिनबम Simony reaction. Okay, mechanism of this one is not in your syllabus. This is a Birnbaum Simony reaction. So naming reactions are always important. So here the preparation of alkyl halide, that is haloalkane, not haloarine, haloalkane. Haloarine तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया. So preparation of haloalkane is finished. So thank you very much.